Hello friends, it's giving me a great pleasure to bring myself online to you with a presentation on an important topic which appears in the examination paper of both the classes 10 plus 1 and 10 plus 2. It is there as question number 2 and that is note making. जी हाँ, नोट मेकिंग। और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में। नोट मेकिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, इसी पर चर्चा करेंगे आज की प्रेजेंटेशन में। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये प्रश्न 10+2 में 7 नंबर के लिए और 10+1 में 7.5 नंबर के लिए पूछा जाता है। नोट मेकिंग मीन्स presenting a very large piece of information. I repeat, presenting a very large piece of information or a detailed description in a very concise manner, in a very brief manner, in the form of main points only. The skill of note making is very useful in a variety of ways. अगर आप में नोट मेकिंग की स्किल है तो इंग्लिश में तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही, यकीन मानिए बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप इस स्किल का यूज करके बहुत अच्छी स्कोरिंग कर पाएंगे। इफ यू आर गुड एट दिस स्किल, यू मे यूज दिस इन योर स्टडीज इन एनी सब्जेक्ट वेयर यू नीड टू रिमेंबर द मेन पॉइंट्स ओनली। You have a thorough understanding of a topic, for example, and you may develop the answer in the examination by elaborating the main points, then surely this skill is of great use to you. Similarly, in the profession of reporting also, this skill is very essential. न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स को जब कोई इवेंट कवर करना होता है और बाद में उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होती है तो वे भी उसमें केवल मेन नोट्स ही तैयार करते हैं। सो समझ गए ना आप कितना इम्पोर्टेंट है इस स्किल को डेवलप करना। लाइकवाइज you may find yourself most favorable in many professions if you are adept in the skill of note making. So friends, don't prepare this topic only for the purpose of getting marks in the exams, but with an approach to develop an important skill in you. केवल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अंदर एक विशेष योग्यता पैदा करने के लिए नोट मेकिंग सीखें। So friends, let us study in a systematic manner how to make good notes. Wish you all a very happy learning. So friends, as I was telling, this is a presentation on a very important topic, that is note making. Important इसलिए कि ये टॉपिक कंपल्सरी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसको अटेम्प्ट नहीं करने पर आप सीधे 7 या 7.5 नंबर मिस कर देते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर हाउ टू मेक नोट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जाता है एक दिए हुए पैसेज के ऊपर नोट्स बनाने के लिए। एडिशनली इन क्लास +1 you are asked to find synonyms of 3 given words in the passage, जबकि 10+2 में आपको अपने बनाए हुए नोट्स के आधार पर पैसेज की समरी डेवलप करनी होती है। This is the question paper of class 10+2. I hope there is no visibility problem to you, and if it is, still you can see here at serial number 2 there is a question on note making. Read the passage carefully and answer the questions that follow. And here is the passage, and then at the end of the passage there are 2 questions in 2 parts, A and B. In part A, you are asked to make notes on the basis of your reading of this passage, while in part B
you are asked to write a summary of the above passage in about 80 words or in about 1/3 length of the passage. So before going into the technique of note making, we shall have an idea about what note making is. जैसा कि आप देख रहे हैं, नोट मेकिंग में आपको 300 से 350 शब्दों के एक बहुत बड़े पैसेज में दी गई जानकारी को सिर्फ मेन पॉइंट्स के रूप में समेट देना होता है. And you have to arrange the main points in a proper sequence. I will tell you later in some slide in what proper sequence you have to arrange your notes. अब चलते हैं नोट्स डेवलप करने की टेक्निक की ओर. The very first step, and I must say the foremost step to this, is that you should read the passage very carefully and thoroughly so as to have a complete understanding of the given matter. नोट्स डेवलप करने की बात हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन में आपको क्वेश्चंस के आंसर देने की बात हो, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होना तो मस्ट है. सबसे पहले आपको अगर ये समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज किस बात के ऊपर है, इस पैसेज में किस टॉपिक के ऊपर कहा गया है, तो नेचुरली इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. अगर एक बार की रीडिंग में पूरी तरह से समझ में नहीं आए तो एक और रीडिंग देने में कोई बुराई नहीं. जब सेकंड रीडिंग कर रहे हो तो की सेंटेंसेस यानी मुख्य बातों को अंडरलाइन करते जाएं, क्योंकि इन्हीं की सेंटेंसेस से आप टाइटल्स एंड सब टाइटल्स बनाएंगे. द थर्ड थिंग इज मेक अ रफ नोट ऑन द मेन पॉइंट्स and give them a logical sequence. And now use any format you like, but it should depend on the theme of the passage. आप सोच रहे होंगे किस फॉर्मेट की बात की जा रही है, तो I will take you to the format. Though there are many formats that you may put your notes into, लेकिन मैं आपको कुछ एक फॉर्मेट्स दिखाऊंगा, उनमें आप अपने नोट्स को फिट कर सकते हैं. देयर इज अ फॉर्मेट लाइक दिस. सपोज कीजिए कि आपको पैसेज में ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है. आपकी फर्स्ट रीडिंग और आपकी सेकंड रीडिंग से आपको ये पता चल गया कि इस पैसेज में इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. तो नेचुरली आप अपने पैसेज को टाइटल देना चाहेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, बट यू आर नॉट बाउंड टू. आप कोई और टाइटल भी दे सकते हैं, बट कीप वन थिंग इन माइंड दैट इट शुड सूट टू द पैसेज. और उसके बाद जो आपने नोट्स फ्रेम किए हैं उनको आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं. दिस इज़ अ सैम्पल. आपके पास और भी कुछ फॉर्मेट्स में डेवलप करने का ऑप्शन है. नंबर 1, सपोज आपने इस तरह से लिखा. मेन हेडिंग के लिए आपने नंबर 1 ये वाली गिनती, ये वाले नंबर्स का यूज़ किया. उसके बाद आपने उसके सब टाइटल्स लिखने के लिए आपको लगता है कि नंबर 1 के अंडर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आगे सब टाइटल्स में डिवाइड की जा सकती है, तो आप उसके लिए ABC, कैपिटल नहीं स्मॉल ABC नंबर्स का यूज़ करके आप उसको नोट्स को डेवलप कर सकते हो. और भी फॉर्मेट है.
आप चाहें तो ये वाले नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल रोमन नंबर्स का, और उसके सब टाइटल्स, सब नोट्स लिखने के लिए आप स्मॉल रोमन नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपको लगता है कि थर्ड सब टाइटल के अंडर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको आगे भी सब नोट्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो आप उसको ए और बी इस तरह से लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट में भी, यानी देयर आर मैनी फॉर्मेट्स, आप कोई भी फॉर्मेट को अडॉप्ट कर सकते हैं। But while preparing notes, you have to keep certain things always in your mind. अब जब नोट्स बनाने लगे हैं तो कुछ बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि नोट्स शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। नोट्स में आपने फुल लेंथ सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना है, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, बल्कि शॉर्ट में आपको नोट्स लिखने हैं, टू द पॉइंट नोट्स आपको लिखने हैं। द सेकंड थिंग इज your notes should have all the important and relevant information. नोट्स में मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि आप की सेंटेंसेस को अंडरलाइन कर रहे हैं। आपने की सेंटेंसेस को अंडरलाइन किया। की सेंटेंसेस क्या है? नोट्स में, पैसेज में जो मेन चीज़ है उसी के ऊपर आपने अपने आप को फोकस रखना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर पैसेज में दी गई है तो आपने उसको इग्नोर करना है। केवल मेन बातों को, मुख्य बातों को आपने उसमें स्थान देना है। सो दे शुड हैव ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ओनली। द थर्ड थिंग इज इंफॉर्मेशन शुड बी सिस्टमेटिकली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड। अभी जो मैं बात कर रहा था फॉर्मेट की, आप सारी इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आप मेन नोट्स और सब नोट्स में डिवाइड करेंगे और इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे किसी भी पैटर्न में। Another important thing while making notes is that you should use universally recognized symbols and abbreviations wherever necessary and provide key to the abbreviations. नोट्स क्योंकि शॉर्ट रखने हैं तो आपको उनको शॉर्ट रखने के लिए अगर आप सिंबल्स का और एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं तो उससे आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। लेटर आई विल टेल यू किस तरह की एब्रीविएशंस आप यूज़ कर सकते हैं। द फिफ्थ थिंग इज मेन टाइटल शुड बी शॉर्ट। नोट्स बनाते हैं आप, नोट्स के बाद आप समरी डेवलप करते हैं और समरी को आप एक टाइटल देते हैं जो आपके पैसेज के मेन कंटेंट को रिफ्लेक्ट करता है, जो आपके पैसेज की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मेन टाइटल शुड बी शॉर्ट। अवॉइड अ लॉन्ग सेंटेंस एज अ टाइटल। शॉर्ट किस तरह से रखेंगे? आपने बहुत सारी कॉम्पोजिशंस पढ़ी हैं किस तरह के शॉर्ट टाइटल्स होते हैं। जस्ट लाइक वर्क इज वर्शिप, इस तरह के टाइटल्स आप शॉर्ट टाइटल्स रखेंगे। हाँ, आप लॉन्ग टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं अगर वो टाइटल कोई प्रोवर्ब हो तो। अगर आप किसी प्रोवर्ब को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि अनईजी लाइज द हेड दैट बियर्स अ क्राउन, या फिर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इस टाइप का अगर आप टाइटल देने जा रहे हैं देन यू आर फ्री टू यूज। बार बार मैं पहले भी कह चुका हूँ, नोट्स मस्ट बी रिटन इन पॉइंट्स ओनली and they should be listed one under the other and numbered properly. ये रिपीटिशन है पहले कही हुई बातों का, तो उनको आपने सिस्टमेटिकली एक के नीचे एक इस तरह से आपने उनको अरेंज करना है। कुछ चीज़ों से आपने बचना है नोट्स बनाते समय,
you have to avoid certain things while preparing notes, and those are: number 1, avoid the use of full and complete sentence. वही बात है, आपको नोट्स को शॉर्ट रखना है, टू द पॉइंट रखना है, फुल और कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है. द सेकेंड थिंग, डू नॉट लिफ्ट पोर्शंस ऑफ द पैसेज टू फॉर्म नोट्स. बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं. पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन में भी बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए वो पूरे का पूरा सेंटेंस पैसेज से ही उठाते हैं और उसको एज आंसर लिख देते हैं. तो इस तरह से आपने नहीं करना है. डू नॉट लिफ्ट पोर्शंस ऑफ द पैसेज टू फॉर्म नोट्स. The next thing is, do not include irrelevant piece of information in your notes. Keep your notes to the point. जैसा कि हमने पहले कहा था, keep your notes to the point. Now, what are the mechanics of note making? यानी नोट मेकिंग में क्या क्या मेन चीजें होती हैं. फर्स्ट थिंग इज यूज ऑफ एब्रीविएशंस. जैसा कि मैंने आपको कहा, यूज ऑफ एब्रीविएशंस, क्योंकि आपको नोट्स को शॉर्ट रखना है. तो आप उसमें बहुत बड़े बड़े अगर पैसेज में कोई वर्ड्स आप देखते हैं, सो यू कैन शॉर्टन दोज वर्ड्स बाय यूजिंग एब्रीविएशंस. बहुत सारी एब्रीविएशंस होती हैं. ये किस टाइप की एब्रीविएशंस हो सकती हैं? कैपिटलाइज्ड फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स. बहुत सारे वर्ड्स को हम इसी तरह से यूज़ करते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस. अगर पैसेज में कहीं इस तरह का वर्ड आता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे. इसी तरह से बहुत सारी एब्रीविएशंस होती हैं जो यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड होती हैं, जिनको सारे लोग जानते हैं. ऐसी एब्रीविएशंस को कहते हैं यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड एब्रीविएशंस. CBSE, NCERT, WHO for example. Then the second type of abbreviations are arithmetic symbols. पैसेज में अगर लेस देन, ग्रेटर देन, किलोग्राम, परसेंट एट्सेट्रा, इस टाइप के वर्ड्स अगर आप देखते हैं, तो आप नोट्स फ्रेम करती बार उन वर्ड्स को पूरा पूरा नहीं लिखेंगे. यू विल यूज सच अरिथमेटिक सिंबल्स इन प्लेस ऑफ दोज वर्ड्स. थर्ड टाइप ऑफ एब्रीविएशंस आर commonly used abbreviations in newspapers, magazines, etc. Just like SC, you may guess SC stands for Supreme Court, I think. Similarly, GOVT, ENG, SANS. Now keep on guessing what they stand for. And then you may invent your own abbreviations depending on the words found in the passage. पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लिए कोई सेट एब्रीविएशंस नहीं है, आपने कभी देखी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा वर्ड है. तो आप उस वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप खुद से भी कुछ एब्रीविएशंस बना सकते हैं, खुद से भी कुछ एब्रीविएशंस इन्वेंट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं EDUL. Now what does this abbreviation stand for? Keep on guessing. क्या हो सकती है EDUL? Okay, I have guessed it right, I think. EDUL, educational. Similarly, POLN, pollution और population. तो ये को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि POLN किसके लिए स्टैंड करता है.
in case you use your own invented contractions, then you are required to provide a key for the same. अगर आपने खुद से कुछ एब्रीविएशंस इन्वेंट किए हैं तो आपको उन एब्रीविएशंस के लिए एक की प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस तरह से. जस्ट लाइक द वर्ड इज प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को आपने कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से किया है, PRBLN. ट्रांसपेरेंट TRPNT लास्ट डॉट. इसी तरह से रिक्वायर्ड RQD. एक बात और नोट करने वाली है कि आपके नोट्स आपके किसी फेलो स्टूडेंट्स के बनाए हुए नोट्स से डिफरेंट हो सकते हैं. नोट्स और पॉइंट्स ऑफ स्टूडेंट्स में वेरी फ्रॉम वन अनदर, बट वन शुड इंश्योर दैट द मेन आइडियाज और व्यूज आर covered in those notes. Then under the mechanics of note makings, another thing is proper sequencing. हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं. इस तरह से आप उनको प्रॉपर सीक्वेंस में रखेंगे. हमने दूसरा फॉर्मेट देखा था. इस तरह से आप उनको वन अंडर द अदर रखते जाएंगे नोट्स को. Another format, there may be some other formats also that you may put your notes into. Next thing in the mechanics of note making is that you should give an appropriate title to the summary. The title may be given at the starting of notes. चाहे तो आप स्टार्टिंग में ही आप टाइटल दे दें या फिर बिफोर समरी. नोट्स के बाद नीचे उसके नीचे आप समरी लिखेंगे तो समरी से पहले आप टाइटल लिख सकते हैं. और ये समरी होती है, दिस कैरीज 3 marks and it should not be more than 1/3 of the passage length. प्रिंसिपली जो समरी है वो गिवन पैसेज की लेंथ का 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको वर्ड लिमिट होती है 80 वर्ड में आपको समरी को कंप्लीट करना होता है. और समराइजिंग किस तरह से की जाती है, जो नोट्स आपने डेवलप किए हैं उन्हीं नोट्स को आप अब फुल सेंटेंसेस की तरह लिखते जाते हैं और एक पैराग्राफ की शेप में आप उनको रख देते हैं. इस तरह से आपकी समरी डेवलप हो जाती है. लेकिन यहाँ पर भी आप एक बात का ध्यान रखेंगे, while making notes you had used certain abbreviations and symbols. लेकिन अब आप उन एब्रीविएशंस और सिंबल्स को यूज़ नहीं करेंगे, रादर आप पूरे सेंटेंसेस लिखेंगे और एब्रीविएशंस की जगह पर फुल वर्ड्स लिखेंगे. सिंबल्स भी यूज नहीं करेंगे. Here is an unseen passage for practice. This passage goes in 1, 2, 3 and 4 पैरास. 4 पैरास का ये एक पैसेज है. एक बार फिर से मैं आपको पैसेज की ओर ले जाता हूँ. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पर. फर्स्ट पैरा मैं आपको यहाँ पर इस पैसेज का पढ़कर दिखाता हूँ. देयर आर 2 problems that cause great worry to our educationists. The problem of religious and moral destruction in the land of many faiths and the problem arising out of the large variety of languages. जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्रिंसिपल ये है, सिद्धांत ये है कि आपका पैसेज जितने पैराज में डिवाइडेड हो, जैसे इन दिस केस
इस पैसेज के 4 पैराज हैं, तो जितने भी पैराज में आपका पैसेज डिवाइड हो, आपको मोटे तौर पर एक एक पैरा से एक एक मेन नोट निकालना होता है। तो यहाँ पर इन दिस केस देयर आर 2 प्रॉब्लम्स दैट कॉज ग्रेट वरी टू आवर एजुकेशनिस्ट। तो यहाँ से आप एक मेन नोट निकालेंगे और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पैरा में 2 प्रॉब्लम्स की बात हुई है, तो हम 2 प्रॉब्लम्स के लिए 2 सब नोट्स निकाल सकते हैं। हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। सो 1 2 3 and 4 पैरास, एंड लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व किया गया है, कैसे नोट्स डेवलप किए गए हैं, क्या टाइटल दिया गया है। यहाँ पर टाइटल देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ फेथ्स एंड लैंग्वेजेस ऑन एजुकेशन। अगर हम पूरा पैरा पढ़ें तो हमें लगेगा कि इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ फेथ्स एंड लैंग्वेजेस, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स, फेथ्स मीन रिलीजन्स, सो इन्फ्लुएंस ऑफ फेथ्स एंड लैंग्वेजेस ऑन एजुकेशन। तो ये एक सैम्पल टाइटल है, आपका टाइटल इससे वेरी भी कर सकता है। अब नोट्स देखिए किस तरह से डेवलप किए गए हैं। फर्स्ट पैरा से उसने जो मेन नोट निकाला है वो है वरी ऑफ अ एजुकेशनिस्ट। मैं आपको एक बार फिर से पैरा की ओर लेके जाता हूं। देयर आर 2 प्रॉब्लम्स दैट कॉज ग्रेट वरी। सो देखिए, वरी ऑफ अ एजुकेशनिस्ट, और 2 प्रॉब्लम्स हैं, 2 वरीज हैं, तो उनको अंडर सब नोट्स 1.1 देखिए एक दूसरा फॉर्मेट जो कि हमने पहले बात नहीं की। मेन नोट को आपने नंबर 1 दिया और उसके सब नोट्स को 1.1, एक और फॉर्मेट यहाँ पर आपके सामने है, 1.1 सब नोट, 1.2 सब नोट। इसी तरह से अगर 2 के नीचे हैं कुछ सब नोट्स तो आप उनको 2.1, 2.2 इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। सो दीज आर नोट्स। देन जैसा मैंने बात की थी, अगर आपने खुद से कुछ एब्रीविएशंस इन्वेंट की हैं तो आप उन एब्रीविएशंस के लिए एक की देंगे। एंड हियर इज द की टू एब्रीविएशंस, एजुकेशन। सी हियर, यहाँ पर एक वर्ड है एजुकेशन। आपने एजुकेशन को पूरा नहीं लिखा, रादर उसके लिए आपने शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन दी, EDN। इसी तरह से बहुत सारी एब्रीविएशंस, बहुत सारे वर्ड्स के लिए जो कि पैसेज में दिखे। लैंग्वेजेस के लिए आपने LANGS लिखा, आप कुछ दूसरी एब्रीविएशन भी यूज़ कर सकते हैं। इन्यूमरेबल के लिए आपने INNUM लिखा, इसी तरह से। और लास्ट में कुछ इस तरह की शेप में आपके नोट्स और आपका सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का दिखेगा पेपर में। आपने एक लेफ्ट हैंड साइड में नोट्स को लिखा है किसी भी फॉर्मेट का यूज़ करके, और राइट हैंड साइड में आप एक टेबल में उन एब्रीविएशंस को रखते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन दिखेगा इस तरह का। +2 के केस में आप उसकी समरी भी डेवलप करेंगे, तो इस तरह की समरी दिखेगी। मैंने आपको बताया है समरी डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने नोट्स फ्रेम किए हैं उन्हीं नोट्स को आप फुल सेंटेंसेस के रूप में लिख देंगे। So this is the summary of the above passage, and this is the complete solution of this question. Once again, notes, abbreviations, and then summary. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। This is me, Naveen Singh, lecturer in English at Government Senior Secondary School, Dhulara, District Chamba,
if still you have some queries unsettled regarding notes making, then you may contact me on this number. Thank you.